پاکستان میں کرونا کے وار جاری، وائرس نے ایک دن میں مزید 52 افراد کی جان لے لی۔ وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 10,461 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,118 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 37,740 ہو گئی۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق امان کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صحت پہلے سے بہتر ہے، آج کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ کوئٹہ میں ثانیہ مچ کے خلاف چوتھے روز بھی دھرنا جاری، حکومتی وفد کی ایک اور کوشش ناکام، متاثرین کا دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر علی زیدی، زلفی بخاری اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی دھرنے کے شرکاء سے ملاقات۔ شہداء کے لواحقین کا کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ ہزارہ برادری کے رہنما آغا رضا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے آنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ علی زیدی کی دھرنے کے شرکاء سے شہداء کی تدفین کی درخواست، کہا یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم لواحقین سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے۔ سانحہ مچ کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری۔ کراچی میں 9 مقامات پر دھرنا، مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ایم اے جناح روڈ، نمائش چرنگی اور یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک کے قریب دھرنا جاری۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس چرنگی اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی دھرنا جاری ہے۔ ڈگ روڈ سے ملیر، کیپری سنیما سے گرو مندر جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ گلستان جوہر میں کامران چرنگی پر دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ ادھر اسلام آباد ڈی چوک میں بھی دھرنا جاری، دھرنے کے شرکاء کا حکومت سے ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سانحہ مچ کے ذمہ داروں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر کوئٹہ کا دورہ کیا۔ مظاہرین کے 8 میں سے 7 مطالبات مان لیے ہیں، اب بھی 2 وزیر دھرنے میں موجود ہیں۔ پی ڈی ایم سے متعلق سوال پر شیخ رشید نے کہا اسلام آباد میں احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے پی ڈی ایم والے آتے ہیں تو آنے دیں، میں یہی کر سکتا ہوں کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج بنوں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بنوں سپورٹس گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نائب صدر نون لیگ مریم نواز جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان، احسن اقبال، یوسف رضا گیلانی اور دیگر جماعتوں کے رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے میں شرکت کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے قافلے بنوں کی جانب رواں دواں۔ قائدین کو اپوزیشن لیڈر کے اسمبلی اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر ظہرانہ دیا جائے گا۔ عوامی مینڈیٹ کو پس پش ڈال کر موجودہ اسمبلیاں وجود میں لائیں گئی، اس جعلی اسمبلی کو وقت پورا نہیں کرنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی شور کوٹ میں بنوں روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا ملتان اور لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسوں اور ریلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ وزیر اعظم نے پسپائی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، آج بنوں میں حکومت کی غیر سنجیدگی پر لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم جماعتیں ضمنی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گی، لیکن سینٹ الیکشن سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں آئین بچانے نکلے ہیں، سینٹ الیکشن چھوڑ دیے تو حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اکثریت ملنے پر حکومت 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتی ہے۔ سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ موقف میں لچک آ گئی ہے۔ مہنگائی نے مزدور، کسان اور نوجوانوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کیسے چلانی ہے، نالائق حکمرانوں کو گھر جانا ہوگا۔ پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او کبھی نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے لفظی وار، کہا اپوزیشن کی تحریک کا کوئی مقصد نہیں، پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے۔ پاکستانی عوام عاقبت نااندیش عناصر کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ملک کی معیشت درست ٹریک پر آ چکی ہے، کرونا کے باوجود کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے، عوام کسی کو بھی ترقی کے سفر میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے۔
एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। दौरान समाअत शहबाज शरीफ बोले, चिन्योट माइन से मुतालिक कुछ तफसीलात पेश करना चाहता हूँ। 2007 में ये ठेका बिडिंग के बगैर दिया गया, मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। 2010 में अदालती हुक्म से ये डाका नाकाम किया। नैब ने पहले कहा कि चूंकि डकैती कामयाब नहीं हुई इसलिए केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद कह रहे हैं कि जुर्म हुआ। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का ठेका बहुत महंगा और गैर कानूनी दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसी ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट करने पर मेरे खिलाफ शहबाज शरीफ की मनपसंद कंपनी ने केस कर दिया। मेट्रो बस पर शहबाज शरीफ ने इंतहा की करप्शन की जिस पर हक़ाइक़ सामने लाया। अब हमारी हुकूमत ने मेट्रो बस के टेंडर इंतहाई कम कीमत में दिए। मेट्रो बस का वही टेंडर शहबाज शरीफ ने 100% महंगा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद धुंध छा गई। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पहाड़ों पर मोतियों ने सफ़ेदी बिखेर दी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। मौसम ख़राब होने पर लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। और मौसम सरमा का खट्टा मीठा और लजीज फल। मुल्तान में लज्जत से भरपूर माल्टा पककर तैयार हो गया है। बागात में हर तरफ धीमी खुशबू का राज। साल भर की मेहनत का फल मिलने पर बागबान खुश हैं। कोयटा में सानहा मच के खिलाफ चौथे रोज भी धरना जारी। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम हो गई। मुतासरीन का धरना खत्म करने से इनकार। कोयटा में सानहा मच के खिलाफ चौथे रोज भी धरना जारी है। हुकूमती वफ्द की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम हो गई। मुतासरीन का धरना खत्म करने से इनकार सामने आया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने धरने के शुरका से मुलाकात की। शोहदा के लवायकीन का कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल ऐसा है कि सानिया जो है मच के हवाले से उनके शोहदा के लवाइकीन आज चौथे रोज़ भी कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना दिए हुए बैठे हैं। न सिर्फ वो बैठे हैं बल्कि वो शोहदा भी इस वक्त उनके हमरा हैं। बाकायदा तौर पर जितने भी लवाइकीन लाशें रख कर यहाँ पर जो है धरना दिए 4 रोज से यही मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान आए और आकर उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करें। इस वक्त भी जो है तकरीबन जो है हज़ारों की तादाद में कई लोग यहाँ पर जमा हैं और धरना दिए हुए बैठे हैं और उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर फरमाएं। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी आए थे और गुज़िश्ता रात जो है आला सती हुकाम भी आए थे। उन्होंने भी आकर इनके जितने भी उलमा कराम हैं, अकाबरीन हैं, उनके साथ बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए। लेकिन इनका सिर्फ यही मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और इनको हज़ारा कम्यूनिटी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता 22 सालों से इनके साथ इसी किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अतवार में भी इनको जो है शहीद किया जा रहा है। इनका यही मुतालबा है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कोयटा पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे कबर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की आमद भी मुतवक्का है। धरने के शुरका के पास आएंगे। शोहदा के लवाइकीन दुरुस्त यहाँ पर मुतासरीन बैठे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने हमें अपडेट किया। सानिया मच के खिलाफ कराची के 9 मकामात पर अलामती धरना जारी है। गुलजार हिजरी, अब्बास टाउन, नुमाइश चुरंगी, जौहर कामरान चुरंगी, नाथा खान, ये इलाके शामिल हैं जहां पर इस वक्त भी धरना जारी है। सानिया मच के खिलाफ शहर के 9 मकामात पर अलामती धरने जारी हैं। गुलजार हिजरी, अब्बास टाउन, नुमाइश चुरंगी, जौहर कामरान चुरंगी, नाथा खान इन इलाकों में शामिल हैं जहां पर इस वक्त धरने जारी हैं। मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल, नाथा खान, गुलशन इकबाल में भी धरने जारी हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साजिद रऊफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। साजिद रऊफ, ये बताइएगा कि किन किन इलाकों में धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है?
देखिए बिल्कुल 3 जनवरी को ये मच के इलाके में 11 कारकुनों के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ आज कराची में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से जो एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। तकरीबन ये 8 से ज़ायद मकामात है जहाँ पर ये एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। नुमाइश चुरंगी का वो इलाका है जहाँ पर सबसे पहले धरना दिया गया था। इसके बाद जो है सफारी पार्क है, अबुल हसन असफहानी रोड है, साथ साथ जो इसके नाता खान रोड, शारा फैसल कायदीन है, पावर हाउस चुरंगी है, कायदाबाद है। तकरीबन ये 8 से ज़ायद मकामात है जहाँ पर इस वक्त जो है वो जो साने मच के जो लवाकिन है उनसे इजहार यकजहती के लिए लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये लोग यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मच के जो लवाकिन है उनको जो है इंसाफ नहीं मिल जाता, और ख़ासतौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जब तक उनसे मुलाकात करने वहाँ नहीं पहुँच जाते उस वक्त जो है उस वक्त तक ये अपना एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बाद जो शहर के जो मुख्तलिफ शाहराह हैं उन पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। खासतौर पर जो सुबह के वक्त जो लोग अपने दफातरों पर जाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम अब से कुछ देर पहले ही DIG ट्रैफिक इकबाल धारा जो है वो सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा है कि पुलिस की भारी नफरी जो है सड़कों पर तैनात की जा रही है ताकि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें अपडेट किया। सानिया मच के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में मुजाहिरीन का धरने में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। इस्लामाबाद सानिया मच के खिलाफ मुजाहिरीन का डी चौक पर धरना जारी है, जिसके मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इकोनॉमी में आप कभी ऐसी एक आम लोग जो घर में बैठे हैं उनको बताने के लिए कि आप कभी किसी ऐसे जगह पर प्लॉट नहीं खरीदते या इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने भले 5 मरले का प्लॉट, जिस कॉलोनी के बारे में ये आपको पता हो इसने नहीं चलना, इस कॉलोनी में बैठ जाना है, इस कॉलोनी का NOC नहीं है, इस कॉलोनी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसी तरह इन्वेस्टर जब किसी मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें भी उसके फ्यूचर के बारे में होता है कि इसका फ्यूचर है या नहीं है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि उसका फ्यूचर नहीं है तो इन्वेस्टर वहां नहीं आता। तो दुश्मन क्या कहता है बार बार, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलनी। दुश्मन क्या कहता है बार बार, इसकी इकॉनमी बैठ जानी है। और वही बात हमारे कुछ सियासतदान भी कहते हैं, वही बात हमारे मीडिया के दोस्त भी को कहते हैं, हमारे अपने लोग कहते हैं कि डॉलर ने 200 रुपए का हो जाना है, कई कह देते हैं, ना हो तो मादरत भी नहीं करते। तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं ये वो दुश्मन का एजेंडा है, क्योंकि जैसे ही आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये दुश्मन का एजेंडा है जो बदकिस्मती से हमारे अंदर के लोग भी पूरा करते हैं। ਇਹ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों कर रहे हैं? ਇਹ ਗੱਲ मैं ਜਿਹੜੀ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कर रहे हैं कि ऐसे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ और चेते रखा करो, अपनी याददाश्त एक हफ्ते ਦੀ ना रखा करो। ऐसे मकरू लोग ਉਹ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। They should not get away with this after damaging your country or country's economy. इस गल तो बाद मैं मूव करांगा आज का जो मुद्दा है जिस वजह से मैं लाहौर में हूं। आप सबको पता है कि मेट्रो बस का एक प्रोजेक्ट लाया गया, बड़ा चर्चा किया गया उसका, जिसको हम लोगों ने जंगला बस कहा था। कोई भी चीज होती है, ये ग्लास है, ये काम आता है पानी पीने के लिए, ये अच्छी चीज है। इसी गिलास से मैं जहर पीऊं तो ये बुरी चीज है, या यही गिलास मैं किसी के सर में मार दूं तो फिर भी बुरी चीज है। तो इसी तरह हम कभी भी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट तो अच्छी चीज है, आप अपने घर में छुरी लाते, खरबूजा काटते, अच्छी चीज है। उसी छुरी से बाहर जाके डाका मारते हैं, अच्छी चीज नहीं है। उसी छुरी को किसी के पेट में मारते हैं, अच्छी चीज नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, मेट्रो बस बनाने के खिलाफ नहीं थे। हम उस चीज के खिलाफ थे जिस अंदाज से ये काम किए जा रहे थे। पंजाबी च कहंदे ने
धाना वाले पिंड पराली तो पछाणे जाते हैं। मीन जिस गांव में चावल होता है, वो जो चावल का भूसा होता है, उसके जो दूर दूर टीले लगे होते हैं, पहले पता चल जाता है उस गांव में जाने से कि यहां चावल होता है। तो जो इनकी हरकत व सकनात थी, जो इनके तरीका वारदात थे, उससे हमें पता चल रहा था। इसलिए हम उसे जंगलाबाज कहते थे, नाकाम कहते थे। जो तारीख ने इमरान खान को एक बार फिर सच्चा साबित किया कि ये हम ठीक कहते थे। आप अगर याद करें तो ये 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 28/9 सितंबर 28 2012 में। पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसमें आप किसी एक पार्टी अगर अप्लाई करे, यूनिलैटरल आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप मल्टीपल कंपैरेटिव बिड्स आती हैं तो फिर किसी को अवॉर्ड करते हैं बिडिंग। बड़े हसीन इत्तेफाक की बात थी कि किसी की प्यारी एक ही कंपनी आई, उसने बिड की मर्जी का रेट, क्योंकि एक कंपनी है वो अपनी मर्जी का रेट बिड करेगी, उसने अपनी मर्जी का रेट बिड किया जी। पहले तो ये सोचने की बात है, मैं हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत मैं पाकिस्तान की करता हूं। मैं दुनिया के हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इज्जत अपने मुल्क की करता हूं। मैं सबसे ज्यादा सगा अपने मुल्क का हूं, क्योंकि मेरे अवाम का यहां पे काम है। मैं अगर बाहर का पढ़ने गया या पढ़ाने गया तो सारा पैसा यहां लाता था कमा के। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान दे विच किसी कंपनी च इन्ना चज नहीं सी हैगा कि 45 बसां चला सकन। पेशावर की बात करते हैं तो वहां तो बसें अपनी खरीद ली ना, पेशावर की जो मास ट्रांजिट थी उन्होंने। कि लाहौर दे विच, पंजाब दे विच, पाकिस्तान दे विच कोई एक कंपनी नहीं सी। मैं चंद कंपनियों के नाम लूंगा, इसलिए नहीं कि वो मैं उन्हीं को जानता हूं शायद, इसलिए और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। फैसल मूवर है, डेवो है, और बहुत सारी यहां पर पाकिस्तान में बस सर्विसेज हैं। कोई 45 बसें नहीं चला सकता था ये इस एक रोड पे, उसके लिए बाहर से कंपनी लाई गई। सवाल तो बनता है बाहर से क्यों लाए आप? एक ही कंपनी, उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी, कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं हुई। अब उसने बिड क्या दी जी? फी किलोमीटर 3.80 $3.80 फी किलोमीटर किराया लेगी वो कंपनी बस चलाने का। ये 2012 में उनको अवार्ड कर दिया गया ठेका। अब उस कंपनी ने 8 साल ये काम किया, बसें चलाई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आ गई 6-7 साल के बाद। 8 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगा तो हमने उसे रिव्यू किया, इन्वेस्टिगेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इंटरेस्ट लिया। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर ने मुझे जाती तौर पर यह शिकायत की कि इसमें बहुत बड़ी कोई ओवर प्राइसिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, कौम का पैसा जाया हो रहा है। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर थे, उन्होंने मुझे कहा तो आप लोग कौम का पैसा बचाएं इसमें। देखें, मैंने वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को कही, उन्होंने डायरेक्शंस दी, इन्वेस्टिगेट हुआ, दोबारा ठेका किया गया हमारी गवर्नमेंट में। इस बार एक कंपनी नहीं आई, क्योंकि इमरान खान का कोई बेटा सलमान शहबाज के नाम का नहीं है जो कंपनियों के साथ डीलिंग वीलिंग करता फिरता है। तो कंपैरेटिव बिडिंग हुई, 3 कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने रेट। मजे की बात है कि जो कंपनी पहले थी उसने भी अपना रेट दिया, और जो रेट उसने 2012 में दिया उससे अब वाला जो रेट उसका था वो 10% कम नहीं था, 20% कम नहीं था, 30% कम नहीं था, 40% कम नहीं था, 50% कम नहीं था, 60% कम नहीं था, 70% कम नहीं था, 80% कम नहीं था, 90% कम नहीं था, 100% कम नहीं था, 100% से भी ज्यादा कम था। कोई कंपनी 3.80 रिसीव करने वाली कंपनी ने $1.86 फी किलोमीटर का रेट कोट किया। क्यों? फर्क क्या पड़ा? पूछते हैं ना किधर है नया पाकिस्तान? ऐसे नया पाकिस्तान कोई कंपनी जिन्हें तुसी 3.80 से देता है वो कंपनी हम तैयार है। क्यों तैयार है? सवाल तो मेरा पूछना बनता है ना, आपका भी पूछना बनता है। ये किसी के प्यो के पैसे नहीं है, ये वही पैसे हैं जो आप लोग तनख्वाह देते हैं। मियां साहब कितना टैक्स देते हो तनख्वाह से?
ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5,500 है ना, ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ है। एक कैमरामैन की तनख्वाह तो माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, पैम्पर खरीदते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं मोटर। आपको पता है 50% से ज्यादा पाकिस्तान में जो पेट्रोल की सेल होती है वो मोटरसाइकिल वाला खरीदता है। ये आपके लिए भी हैरान को नंबर होगा। मोटरसाइकिल सवार जो पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के पेट्रोल की कंजम्पशन का 50% है तकरीबन। उस हर लीटर पे वो जो टैक्स देता है उसमें से ये निकलता है पैसा। ये ना हम पैसा लेके आए हैं जेबों में हुकूमत करते आते हुए, ना इमरान खान साहब लेके आए थे, ना मियां साहब लेके आए हैं, ना जरदारी साहब लेके। आपका पैसा होता है जो गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है वापस। हाँ, ये फर्क है कि कई लोग जेबा भर के लेके जाते हैं और कुछ लोग उसे आवाम की खिदमत समझते हैं। तो ये क्या हुआ, टाइम में कम लूंगा इसलिए शॉर्ट बात करूंगा। अब हमारी हुकूमत में ये 1.86%, $1.86 के ऊपर ये हमने एक नई कंपनी को अवार्ड कर दिया, लेकिन इस कंपनी का रेट भी वही था तकरीबन।